Hello student, today we discuss the exercise 4.1, question number 2. The question number 2 is, represent the following situation in the form of a quadratic equation. हमें जो given situation दे रखी है उसको हमें एक quadratic equation की form में convert करना है. Okay. So the first question is, the area of a rectangular plot is 528 meters square and the length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. Let's see how we can solve this. हमें ये एक rectangular plot दे रखा है. So this is a rectangular plot. Area is given as that is 528 meter square. इसकी length हम L मान लेते हैं, breadth B मान लेते हैं. Okay. So according to question, length and breadth. Okay. Breadth को मैं x meter assume कर लेता हूँ. Let's say breadth is x meter. Now according to question, जो लेंथ है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब अगर हम ब्रेथ का डबल कर दें, ट्वाइस ब्रेथ दैट इज 2x, और उससे भी कितना ग्रेटर है, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. सो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर्स और ब्रेथ हो जाएगी x मीटर. क्लियर? नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया की वैल्यू हमें दे रखी दैट इज 528. लेंथ की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ इज x. क्लियर? सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 528 इज इक्वल्स टू 2x इंटू x दैट इज 2x स्क्वायर, 1 इंटू x. सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को भी शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस 528 बन जाएगा इक्वल टू 0. सो ये हमारी एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करने पे हमें x मिलेगा. By solving this we get x, and अगर हमें x मिल गया तो we can find length and breadth. So now we move to the second question. Now the second question, यहाँ पे हमें दे रखा है the product of two consecutive positive integer is 306 and we need to find the integers. Okay, let the two consecutive मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, जैसे 3 and 4 are consecutive. तो consecutive integers के बीच में जो गैप होता है that is 1 का गैप होता है. Let the two consecutive positive integer are, let's say एक को x मान लेते हैं, दूसरे को x plus 1 मान लेते हैं. क्लियर? Now according to question हमें दे रखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है that is x into x plus 1 is equals to 306. So x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get x square, x को 1 से करेंगे तो we get x equals to 306. So x square plus x, 306 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, that is minus 306 equals to 0. So this is our required equation. Now जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो we get x. X is nothing but our integer. So in this way we can find the integer. Now we move to the third part. Now question number 3. Now according to this question, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360 and we would like to find Rohan's present age. हमें रोहन की प्रेजेंट एज को पता करना है. तो सबसे पहले तो हम ये assume कर लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज, let Rohan present age is x years, okay? And his mother एज इज, क्योंकि इसकी मदर से 26 इयर्स बड़ी है तो उसकी एज जाएगी x प्लस 26 इयर्स. क्लियर? नाउ आफ्टर 3 इयर्स, अगर हम 3 साल आगे की बात करेंगे तो रोहन्स एज विल बी, रोहन की एज 3 साल बढ़ जाएगी तो रोहन की एज जाएगी x प्लस 3 एंड his mother age will be, मदर एज की प्रेजेंट एज x प्लस 26 थी, 3 साल बाद 3 साल ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 29 हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर्स. ये रोहन की मदर एज. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद वाली, तो 3 साल बाद रोहन की एज है x प्लस 3 और उसकी मदर की एज है x प्लस 29.
तो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है दे रखा है हमें क्वेश्चन में 360. Now x into x, that is x square, x into 29, 29x, 3 into x, that is 3x, 3 into 29, that is 87, is equals to 360. Now x square 29x plus 3x हो जाएगा 32x plus 87 360 को शिफ्ट करेंगे minus 360 equals to 0. So x square plus 32x minus 360 में से 87 गए तो 273. So this is our required equation. यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलेगा और x ही हमारी ड्रॉन की प्रेजेंट एज रिप्रेजेंट करेगी. So now we move to the last question of this. Now question number 4. So a train traveled a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यहाँ पे हमें ट्रेन की स्पीड को पता करना है. तो सबसे पहले तो हम ट्रेन की स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं. That the speed of the train is x किलोमीटर पर आवर और जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो गिवन है, that is 480 किलोमीटर. और हमें मालूम है कि कितना टाइम लगेगा. हमारी स्पीड है x, डिस्टेंस है 480. तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा that is टाइम को हम t से डिनोट कर देते हैं, that is डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस हमें दे रखा है that is 480 एंड द स्पीड इज x. तो हमारी जो यूनिट आएगी टाइम की, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएंगे, टाइम की जो यूनिट आएगी that is in hours. नाउ बाद में ये बता रखा है कि अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, अभी स्पीड x थी, नाउ द न्यू स्पीड इज x minus 8 किलोमीटर पर आवर. और जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो तो सेम ही करना है जो पहले करना था, that is 480. अब स्पीड कम कर दी है और डिस्टेंस वही है, तो डेफिनेटली जो टाइम हमें लगेगा वो ज्यादा ही लगेगा. उसको नाम दे दे टी डैश. टाइम का फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमें जो ट्रेवल करना है that is 480, लेकिन इस बार जो हमारी स्पीड है that is x minus 8 एंड अगेन इट इज इन आवर्स. अब ये जो टाइम है डेफिनेटली पुराने वाले टाइम से ग्रेटर होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड कम है. डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम स्पीड हमारी कम हो गई, तो इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सिचुएशन में जो टाइम लग रहा है वो ग्रेटर है इनिशियल टाइम से कितना, 3 आवर्स मोर. क्लियर? सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 3. नाउ टी डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, 480 अपॉन x माइनस 8. टी की वैल्यू कितनी है, 480 बाय x इज इक्वल टू 3. क्लियर? नाउ यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज चलिए पहले 480 को अपन बाहर कॉमन निकाल लेते हैं. ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3. नाउ ये 480 3 से कैंसिल हो जाएगा 160 टाइम्स. सो 160 ब्रैकेट इसका एलसीएम ले लिया x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल टू 1. क्लियर? तो x माइनस 8 को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 से कैंसिल बचा x माइनस x माइनस 8. क्लियर? सो 160 ब्रैकेट x माइनस 8 इंटू x की ब्रैकेट ओपन किया तो x माइनस x प्लस 8. क्लियर? इज इक्वल टू 1. तो x कैंसिल, सिंपली 8 बचा. सो 160 इंटू 8 बिकम 160 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 1280. x इंटू x माइनस 8 करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280. सो इक्वेशन बिकम x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 1. x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 1. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी गेटिंग x and x is the speed of the, so the required equation is x square minus 8x minus 1280 equals to 0. Thank you.